Good morning, students. Welcome to English online classes. Today we are going to start lesson number 7 of English grammar book. In this chapter, we will study about adverbs and its types. So, first of all, let us understand what is adverb. An adverb is a word that adds to the meaning of a verb, an adjective or another adverb. Adverbs वो वर्ड्स होते हैं जो हमें वर्ब के बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. ऑल राइट, दैट इज़ कॉल्ड एडवर्ब. इनको क्या कहते हैं? एडवर्ब्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सी, आई वॉज वॉकिंग स्लोली इन द पार्क. लीव्स वर फॉलिंग सॉफ्टली. Suddenly I saw a beautiful peacock. Immediately I stepped forward. Shyly it came to me. Tragically I woke up. So bold, those words which are in bold manner are adverbs. See, walking is verb here. So I was walking. मैं चल रहा हूँ. कैसे चल रहा हूँ? Slowly. This is the manner of my walking. कि मेरी चलने का जो तरीका है वो कैसा है? Slowly. So slowly word is here telling us about verb. Verb के बारे में हमें बता रहा है कि उसका जो चलने का तरीका है वो कैसा है. Leaves were falling softly. Leaves क्या है? वो falling मतलब गिर रही हैं. कैसे? Softly, बड़े ही softly. So falling is the verb here. Softly, उनका गिरने का तरीका कैसा है? Softly. तो ये हमें verb के बारे में और भी ज़्यादा information provide कर रहे हैं. Suddenly I saw a beautiful peacock. अचानक से मैंने एक बहुत ही सुंदर पिकॉक देखा. Immediately I stepped forward. मैं एक कदम आगे बढ़ा. कब? Immediately. Okay. So these bold words are adverbs. Now in this chapter total 5 types of adverbs are there. Adverb of place, adverb of frequency, adverb of degree and quantity, adverb of manner and adverb of time. For all these 5 types we will learn in this chapter. First is adverb of place. An adverb of place shows where an action is done. Adverb of place हमें बताता है कि जो action है, जो काम है वो कहाँ पे हुआ है. And answer WH questions having where. और उन क्वेश्चंस का आंसर देता है जो WH से स्टार्ट होते हैं, लाइक वेयर. फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू हैवी रेनफॉल वाटर वॉज लीकिंग फ्रॉम एवरीवेयर इन द हाउस. हैवी रेनफॉल की वजह से घर के अंदर पानी हर जगह से लीक हो रहा है, एवरीवेयर. देवी लोस्ट हर बैलेंस एंड टम्बल डाउन द स्टेयर. देवी का बैलेंस खो गया और वो क्या है? स्टेयर से गिर गई. The cab will arrive here at 9 AM. कैब यहाँ पे कब आएगी? यहाँ पे कब आएगी? 9 AM. Okay. So everywhere, down, here, somewhere, anywhere, down, up, upstairs, downstairs. All these are adverb of place. Next is adverb of manner. An adverb of manner expresses how an action is done. Adverb of manner हमें बताता है कि जो action है वो कैसे हुआ है. और happens and answer the WH question having how, कि वो चीज़ कैसे हुई है. He delivered the speech flawlessly. उसने जो speech दी वो बहुत ही flawless थी. She conducted herself confidently on the stage. उसने खुद को conduct किया. कैसे किया? Confidently किया. Jojo dressed quickly to reach the office on time. Jojo फटाफट तैयार हो गया to reach the office on time, ऑफिस पहुँचने के लिए. Okay, so these are the adverbs that is telling us an action is done and how it is done, कि वो कैसे हुआ है. That is called adverb of manner. Most of the adverb of manners are formed by adding ly at the end of the word. Okay, mostly, not all. Next is adverb of frequency, कि कोई काम कितना frequent हो रहा है. Like an adverb of frequency shows how often an action is done, कि कोई काम कितना frequently होता है और कितना repeat होता है. And answer the question, और किस चीज़ का जवाब देते हैं? Question having how often, कि वो काम कितना जल्दी हो रहा है. सुनीता prays daily for the well-being of her family. सुनीता अपने घर के अच्छे के लिए डेली भगवान से प्रे करती है. We often play carom in our free time.
हम अब अक्सर अपने फ्री टाइम में कैरम खेलते हैं। रानी हैज़ टॉप द स्कूल अगेन, रानी ने अगेन स्कूल में टॉप किया है। सो दिस इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ देयर वर्क, कि वो काम को कैसे कर रहे हैं। शी इज़ प्लेइंग डेली, दे आर प्लेइंग ऑफन, वो कभी कभी खेलते हैं, वो अक्सर खेलते हैं, सॉरी। रानी हैज़ टॉप द स्कूल अगेन, रानी ने फिर से स्कूल में टॉप किया है। नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ टाइम। एन एडवर्ब ऑफ टाइम शोज व्हेन एन एक्शन हैपन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस व्हेन, कि कोई काम किस टाइम पे हुआ है। ही गोज़ फॉर अ ब्रिस्क वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग, वो मॉर्निंग वॉक के लिए कब जाता है, अर्ली इन द मॉर्निंग, तो वो अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह वो वॉक के लिए जाता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है अब। ऑल द बैंक्स आर क्लोज्ड, सारे बैंक क्लोज हैं, कब क्लोज हैं, टुडे, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, नाउ, अर्ली, देन, ऑल दीज आर एडवर्ब ऑफ टाइम। ये सब क्या है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम होती हैं। नाउ एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड और क्वांटिटी। एन एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी आंसर द WH क्वेश्चन हैविंग टू व्हाट डिग्री और हाउ मच, कि कोई चीज़ है तो वो किस लेवल तक है, कहाँ तक है। सी वी हैव डन डिग्रीज इन विच पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्री, जो कि कंपैरिजन करने के लिए और एक लेवल को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं। सेम थिंग इज़ हेयर। स्वीट्स आर क्वाइट पॉपुलर इन इंडिया, स्वीट्स जो हैं वो इंडिया में बहुत पॉपुलर हैं। द चिल्ड्रन वर टू एक्साइटेड टू स्लीप, बच्चे सोने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। ही स्वेप्ट द फ्लोर वेरी केयरफुली, उसने फ्लोर साफ किया बहुत ही केयरफुली। पिकिंग एवरी पीस ऑफ द ब्रोकन ग्लास, टूटे हुए हर एक ग्लास का उसने पीस उठाया। सो दिस इज शोइंग टू हाउ एक्सटेंड, मतलब कि किस लेवल तक। क्वाइट, टू, वेरी, दीज आर एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। Okay, always remember that the function of an adjective is to modify the meaning of a noun or a pronoun. On the other hand, the function of an adverb is to add emphasis to the meaning of a verb, adjective or another adverb. See, he is a tall and handsome boy. The word tall and handsome tell us समथिंग एक्स्ट्रा अबाउट द नाउन, मतलब कि यहाँ पे टॉल और हैंडसम हमें लड़के के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि वो लड़का लंबा है और हैंडसम है। इट वॉज रेनिंग हैविली, बहुत ही भारी बारिश हो रही है। वी एक्सपेक्ट वेरी हैवी रेन टुडे, इट रेन्ड वेरी हैविली। नाउ सी इन सेंटेंस 1 हैविली मॉडिफाइज द वर्ब रेनिंग, मतलब कि हैविली वर्ड जो है वो रेनिंग के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। और वेरी मॉडिफाइज द एडजेक्टिव हैवी, और यहाँ पे वेरी हैवी यहाँ पे एडजेक्टिव के लिए, क्योंकि हैवी रेन, रेन के बारे में, रेन इज़ अ नाउन और हैवी यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, जो कि हमें रेन के बारे में बता रहा है कि रेन कैसी हो रही है, हैवी हो रही है। और हैवी के साथ में क्या है, एडवर्ब का यूज़ हुआ है वेरी, तो यहाँ पे हैविली का यूज़ हुआ है रेनिंग के लिए, वर्ब के लिए, ठीक है। और यहाँ पे वेरी का यूज़ हुआ है हैवी के साथ एडजेक्टिव के लिए। एंड इट रेन्ड वेरी हैविली, और यहाँ पे एडवर्ब के साथ ही एडवर्ब का यूज़ हुआ है। Okay, understood? Now sending you the bookwork, do it. Okay, thank you.